Hello friend, good morning, good afternoon and good evening. So today we are going to discuss about the SAP PM business process. So now I'm going to discuss with you. So here we have 5 different type of business process. Okay, which comes under the standard. So first is a corrective maintenance, second is a breakdown maintenance, third is a preventive maintenance, and fourth is a refurbishment, and fifth is a calibration maintenance. Okay, so now we will discuss about the same things. Okay, what we will need to need to uh, perform this business process. So first we need to set up master data. The master data will be function location, equipment, work center. These three things will be required to perform standard business process in SAP PM. ओके, सो हमें पहले मास्टर डेटा सेटअप करने की जरूरत होती है. अगर हमने मास्टर डेटा सेटअप कर लिया, जैसे कि फंक्शन लोकेशन, इक्विपमेंट और वर्क सेंटर हमने अगर क्रिएट कर लिया, तो हम SAP के किसी भी बिजनेस प्रोसेस को रन कर सकते हैं. सो द बिजनेस प्रोसेस, जो बिजनेस प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है, वो है corrective maintenance, breakdown maintenance, preventive maintenance, refurbishment maintenance, and calibration maintenance. Now, today we will discuss about the first one, corrective maintenance. Okay, so here, what is corrective maintenance? So, corrective maintenance is a maintenance task performed to identify, isolate, and rectify a fault so that the failed equipment, machine, or system can be restored to an operational condition within the tolerance or limit established for in service. Okay, can be restored to an operational condition within the tolerance or limit established for in service operation. Okay, corrective maintenance involve the following steps under the plant maintenance. The plant maintenance user enter a notification in SAP system to request maintenance and to repair defective equipment. The maintenance planner create, plan and schedule a maintenance work order in the system. The work order is received by the technician, and fourth one is an authorized person in the PM system approve and complete the work as per your work order. And you create a M1 maintenance request notification and PM01 order type, and equipment is repaired at the site. So let's have a look at the flow of the SAP corrective maintenance process. So here I have maintained the process step, business process step, which will be applicable for corrective maintenance. First is a maintenance notification, second is a maintenance order, third is a stock overview. Okay, fourth is a goods issue, then five is a order time confirmation, and six is a maintenance notification TACO and maintenance order TACO. And the T code for which for all the business process step I have maintained here. And the data create which so when we will create notification, we will get some number, then we will maintain here. So these are the six, or sorry, these are the 7 steps uh, which are of corrective maintenance. Okay, so now I'm going on SAP server. Here we will discuss about the corrective maintenance. So first I am going to create notification. Okay, so IW21 is the T code to create notification. I will take notification type from here, M1 maintenance request, and then press enter. Okay, after that I will choose equipment. So from here we can choose equipment. So I will choose plant 1710 and press enter. So what is the our equipment? Yesterday we had in yesterday session we have created some equipment. Okay, now I'm going to create. Okay, so I am considering electric motor or diesel genset. I can take. So suppose I am selecting diesel genset. Press enter.
This is object information. It is showing ki how many breakdown repeated for this equipment, how notification, how many notification is created, how many order is created for particular equipment. So you can see here it is showing 00, means before it we have not created any. Since 812 there are not created any notification order and anything. So then I will click on continue, and detail will come automatically. Here I will test corrective maintenance. Okay, after that uh, i will uh, I will maintain detail. Suppose I will write description ki when we visit near diesel genset, we found that cooling fan bearing got damage. Okay, then I will press enter. After that I will go through the malfunction and break. So in reference object there is nothing, no need to come on this. So what I will take, okay, and then I will malfunction breakdown. Here I will maintain date, today date and the time. Okay, in this window we will maintain 2 o'clock notification date and time, and required start 2 o'clock. Priority I will take medium, then press it. A system will ask, do you want to specify new date? No. After that I will release this flag or click on this flag to put in process to this notification. I will click on it and I will save it. So what we will get? We will get some notification number. Okay, this is our notification number 1,4x0373. So here I will maintain 1,4x0373. This is our notification number. Okay, so now we will go to create maintenance order against this notification number. Okay, so how we can create? We can go to notification change mode. So I will use T code IW22. So and put the notification number and press enter. Okay, or there are another option. IW34 is the T code. From here we can create notification. So here we can select order type. So I will take PM01, and priority I will take medium, and planning plant I will take 1710, and then press enter. Okay, so there is two way to create notification against order, create order against notification. So this is how we can create. We have created maintenance order. Okay, so what we will do? We will go again and check notification. Why machine got breakdown? So because okay, in notification we have maintained na, when we visit near the diesel genset, we found that cooling fan bearing got damage. So इससे हमको मालूम चलता है कि मशीन में कूलिंग फैन की बेयरिंग डैमेज हो चुकी है. ओके, देन हम क्या करेंगे कि आई विल रिलीज दिस फ्लैग and then save it, and I will save it. So this is how what we have created. We have created order. I will mention in order tab, order box 14x0343. Okay, 3 times 0. Okay, then what I will do? I will go through change mode.
order in change mode and then press put order number and press enter. सो हमको अब क्या जरूरत होगी, हमको इस इक्विपमेंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पे हम ऑपरेशन में क्या मेंटेन करते हैं, कूलिंग फैन DAM डैमेज। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कूलिंग फैन डैमेज है तो हम उसके लिए कंपोनेंट इशू करना पड़ेगा। कंपोनेंट टैब में ये देखिए ऑपरेशन टैब है, यहाँ पे केवल ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल हम यहाँ फिल करते हैं। अगर एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो एक ऑपरेशन लिखेंगे, अदरवाइज अगर कोई और ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हमको जो इस ऑपरेशन के थ्रू जो कंपोनेंट इशू करना है वो यहाँ होगा। तो कंपोनेंट का मतलब होता है कि मटेरियल और स्पेयर पार्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम स्टॉक ओवरव्यू करेंगे। सो स्टॉक ओवर द टी कोड विल बी MP52 is the T code to overview stock display warehouse stock of material। सो कल मैंने कुछ मटेरियल क्रिएट किया है, या जो भी हमारे स्टॉक में जो भी मटेरियल है या बेयरिंग है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अपना प्लांट और साथ ही साथ प्लांट के साथ साथ एंड स्टोरेज लोकेशन पुट कर देंगे एंड देन एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको जो भी मटेरियल होगा वो यहाँ हमको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा, सपोज दैट कि अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो हम उसको यूज भी कर सकते हैं। सो सपोज एक मटेरियल हमारे पास है लेकिन ये इंजन है, सो मैं क्या करूंगा, एक नया मटेरियल क्रिएट करूंगा। इट इज ओनली फॉर ट्रेनिंग, ऐसा नहीं होता है कि रियल टाइम भी ऐसा होता है, ये ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसा होता है, केवल ये सारी चीजें होती हैं। सो MM01 इज द टी कोड, आपको ये क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपको केवल 8749 प्रेस इंटर, MB52 8794, ओके 8794। आई विल प्रेस इंटर, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। इसका नाम प्लांट 1710 SLOC, प्रेस इंटर। ये बियरिंग में नाम इसका चेंज कर दूंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। सो अब हम आके देखेंगे अपना स्टॉक, अगेन हम स्टॉक चेक करेंगे तो हमको एक बियरिंग मिलेगा, स्टॉक में एक बियरिंग है, इसकी क्वांटिटी 1 है और मटेरियल इसका प्राइस है 150 USD। सो सेम बियरिंग हम लोग यहाँ कहाँ कंपोनेंट यूज करेंगे, इस कंपोनेंट में। तो मैं सेम बियरिंग नंबर 8794 का बियरिंग क्वांटिटी 1, ये देखिए यहाँ आइटम कैटेगरी होता है, आइटम कैटेगरी हमेशा L लेते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो आइटम कैटेगरी स्टॉक आइटम, स्टोरेज लोकेशन SLOC प्लांट 1710 और मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। अब क्या करेंगे, इस आइटम को लाइन को सेलेक्ट करके और यहाँ से हम जनरल डेटा पर जाएंगे। सो ये वी विल गेट रिजर्वेशन नंबर, ये रिजर्वेशन नंबर है, और देन वी विल गो बैक अगेन एंड सेव इट। सो क्या हो गया, हमने ऑर्डर क्रिएट किया और उसमें क्या किया, कंपोनेंट टैब में एक मटेरियल ऐड किया जो हमें मटेरियल की जरूरत थी, क्योंकि कूलिंग फैन का बियरिंग डैमेज था और हमने वो मेंटेन कर दिया। कॉस्टिंग में आके देखेंगे तो स्टॉक मटेरियल का कॉस्ट यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कई तरह के कॉस्ट हैं, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, प्लान कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है। तो ये प्लान कॉस्ट जो होता है ना, वो मटेरियल के वैल्यू से आता है, जितना मटेरियल का वैल्यू पुट किया रहेगा मटेरियल मास्टर में उतना वैल्यू ये आता है, ठीक है। ओके, देन वी विल गो फॉर द गुड्स इशू। तो अब हम क्या करने जाएंगे, ये देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमने स्टॉक में देखा और MMB या MB52 के थ्रू, MB52 के थ्रू तो हमारा ये डन हो गया, मतलब हमने चेक किया अपने स्टॉक में और हमको मटेरियल मिला, ठीक है। सो अब हम जाएंगे गुड्स इशू के लिए। सो गुड्स इशू के लिए टी कोड विल बी MIGO। सो आई विल यूज टी कोड MIGO, प्रेस इंटर, और यहाँ मैं क्या लूंगा, गुड्स इशू, ये रिजर्वेशन नंबर रहेगा, यहाँ से मैं रिजर्वेशन नंबर लूंगा और यहाँ मैं क्या करूंगा, रिजर्वेशन नंबर पुट कर दूंगा एंड देन प्रेस इंटर। सो आपको यही जो स्पेयर जो उस मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इशू करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं टू रिकवर
पर्टिकुलर इक्विपमेंट फ्रॉम ब्रेकडाउन टू एक्चुअल कंडीशन, आप उस मशीन को रिकवर कर रहे हैं ताकि ब्रेकडाउन से एक्चुअल कंडीशन में आ जाए और ये वर्किंग कंडीशन में आ जाए, उसके लिए हम गुड्स इशू कर रहे हैं। तो ये उस ऑर्डर का डिटेल यहाँ दिखेगा, और वो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं वो भी दिखेगा, ये कितना क्वांटिटी ये दिखेगा, वेयर कहाँ यूज किया है ये भी दिखेगा, और रिजर्वेशन नंबर यहाँ दिखेगा। ठीक, और पार्टनर अकाउंट असाइनमेंट। सो हमको कुछ नहीं करना, हमको मटेरियल टैब पे आना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आइटम ओके पे क्लिक कर दीजिए, एंड देन चेक करिए, चेक करेंगे हम। सो डॉक्यूमेंट इज ओके एंड वी कैन पोस्ट इट, जस्ट हम इसको पोस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट नंबर है 49 4 टाइम 0 8421, 49 4 टाइम 0 8421। ओके, सो हमने क्या किया, गुड्स इशू भी कर लिया। अब हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, अब है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ऑर्डर टाइम कंफर्मेशन। उसके लिए जो टी कोड होगा IW41 होगा। सो हम क्या करने जा रहे हैं, अब ऑर्डर टाइम कंफर्मेशन करने जा रहे हैं। ऑर्डर टाइम इसलिए कंफर्म किया जाता है कि हाँ हमने ये एक्टिविटी किया और इसमें इतना टाइम लगा और ऐसे हुआ, देन ये प्रेस इंटर। अब ये क्या है, ये इंटर पीएम ऑर्डर कंफर्मेशन। सो हमको यहाँ पीएम ऑर्डर में जो भी हम मेंटेनेंस प्लांट मेंटेनेंस ऑर्डर को हम कंफर्म करने जा रहे हैं उसका यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर नंबर डाल के और हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारा जो डिटेल है, जो भी हम वर्क किए हैं वो दिखेगा। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन पे क्लिक टिक करिए, नो रिमेनिंग वर्क पे क्लिक टिक करिए, क्लियर ओपन रिक्वेजिशन रिजर्वेशन पे क्लिक करिए, और देन ये जो टाइम है, आज का टाइम है ना, सुबह 2 बजे से शाम के 3 बजे, 1 घंटे लगे इसको करने में। ठीक है, तो अब इसको करने के बाद यहाँ पे डालिए वर्क डन। वी नीड टू मेंटेन दिस थिंग्स, जो जितना टाइम आपको लगा काम करने में, सपोज हमने 2 बजे नोटिफिकेशन क्रिएट किया और 3 बजे तक हमारा काम हो गया, वर्क फिनिश टाइम और वर्क स्टार्ट टाइम जितना भी लगा आप वहां मेंटेन कर देंगे, और डेट, पोस्टिंग डेट और वर्क स्टार्ट डेट एज पर आवर बिजनेस प्रोसेस वी विल मेंटेन। देन क्या करेंगे, ये वर्क डन लिख देंगे यहाँ पे, टाइप करेंगे वर्क डन, एंड देन वी विल सेव इट। सो देखेंगे ये नंबर ऑफ कंफर्मेशन सेव फॉर ऑर्डर। सो ये भी काम हमने कंप्लीट कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, हमने डन कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को टैकल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो मशीन था जो ब्रेकडाउन कंडीशन में था, अब वो एक्चुअल कंडीशन में आ गया है। ओके, क्यों, क्योंकि हमको उसमें क्या हुआ था, एक मशीन थी डीजल जेनसेट, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम था, यहाँ देखिए, उसमें प्रॉब्लम ये था कि इफ वी फाउंड दैट कूलिंग फैन बियरिंग गॉट डैमेज, उसका बियरिंग डैमेज हो गया था, कूलिंग फैन में जो बियरिंग लगता है, तो हमने वो इशू कर दिया। अब हमको क्या करना है, जब हमने इशू कर दिया और हमने इशू करने के बाद, गुड्स इशू करने के बाद हमने उसको ऑर्डर भी कंफर्म कर दिया कि हाँ अब हमारा काम ओके हो चुका है, मतलब हम पूरी तरह से श्योर हैं कि हमने जो कुछ भी है उसकी वजह से मशीन रेडी है, अब मशीन वर्किंग कंडीशन में आ सकती है, मतलब आ जाएगी। ठीक है, और मशीन आ चुकी है, हम ये कंफर्म करते हैं। ये देखिए प्रैक्टिकली सब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ये होता ऐसे ही, यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मेंटेनेंस नोटिफिकेशन टेको। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डायरेक्टली हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायरमेंट जो है, अगर आज का डेट है सो आज का डेट डाल के, और ये 3 बजे का टाइम डाल देंगे ताकि 1 घंटे का लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ माल फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे आज का डेट और 3 बजे का टाइम, तो ये सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा कि ये कितना घंटा टाइम लगा इस मशीन को रिकवर करने में। ओके, और ये ओके। और उसके बाद मैं बता दूं कैटलॉग प्रोफाइल का यूज कहाँ होता है ना, वो भी चीजें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये आइटम टैब में आइएगा ना, आइटम टैब में तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ से सर्च करिएगा कैटलॉग प्रोफाइल, तो आपको यहाँ से दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट पार्ट, तो क्या आपने डैमेज किया था, बियरिंग, हमारा बियरिंग डैमेज हुआ था। ओहो, यहाँ से मैं सर्च करूंगा मैकेनिकल डैमेज जो भी है ऑब्जेक्ट पार्ट, तो ये बियरिंग मेरा डैमेज हुआ था, तो मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। उसके बाद ये कॉजेज में क्या लिखूंगा मैं, कॉजेज में जो भी किस कारण से हुआ था वो यहाँ से कोड ग्रुप सर्च करूंगा मैं, और कॉज क्या था,
ये ब्रेकेज हो गया था, और मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। टास्क लिस्ट, टास्क क्या हमने परफॉर्म किया था इसके लिए, तो देखिए यहाँ से सर्च करके बियरिंग रिप्लेस किया था, रिप्लेस पार्ट, ओके, पार्ट रिप्लेस किया था। उसके बाद एक्टिविटी में हमने क्या किया, यहाँ एक्टिविटी में आएंगे, ये सर्च करूंगा मैं यहाँ से, और ये एक्टिविटी में पार्ट रिप्लेस हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होता है टास्क के लिए। इसको मैं यहाँ से सर्च करूंगा, टास्क जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, रिप्लेस पार्ट किए थे, पार्ट ही रिप्लेस किया ना हमने, हमने तो केवल पार्ट को चेंज किया था, पार्ट रिप्लेस्ड, ओके। एक्टिविटी में आऊंगा, यहाँ पे एक्टिविटी जो भी मैंने किया है वो एक्टिविटी चेंज कर दूंगा, तो ये पार्ट रिप्लेस हो गया, ओके, पार्ट रिप्लेस, रिप्लेस करके मैं प्रेस इंटर कर दूंगा। अब उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से नोटिफिकेशन ओके है। अब हमको क्या करना है, ये जो ब्लैक कलर का फिगर दिख रहा है, इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कंप्लीट दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्या कुछ बोलता है, ये कुछ फंक्शन यू हैव सेलेक्टेड कैरी कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल, ओके, आउटस्टैंडिंग टास्क। तो ये आउटस्टैंडिंग टास्क क्यों दिखा रहा है, मैं बता रहा हूँ। ये टास्क जो है ना, इस टास्क को सेलेक्ट करके पहले इसको रिलीज करना पड़ता है, और फिर उस तो इसका देख रहेंगे टास्क का स्टेटस चेंज हो जाएगा, देन फिर इसको क्लिक करके कंप्लीट करना पड़ता है, तब ये अब आग जाके आपको एरर नहीं देगा। फिर आइटम में भी आके आपको इस टास्क लिस्ट में यहाँ पे इस लाइन आइटम को सेलेक्ट करके रिलीज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद तो इसका देखेंगे टास्क का स्टेटस TSRL हो गया, रिलीज इन टास्क लिस्ट रिलीज हो गया। अब इसको कंप्लीट कर देगा तो ये टास्क लिस्ट कंप्लीटेड हो गया। देन अब इसको आप रिलीज करिएगा कंप्लीट का, तो आपको एरर नहीं देगा। और अब जब आपका नोटिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, उतने बजे का टाइम यहाँ डाल देना है, कंप्लीटिशन का टाइम डाल के कंटिन्यू क्लिक कर देना है। देखिए नोटिफिकेशन इतना कंप्लीटेड, तो हमने क्या किया, नोटिफिकेशन तो टेको को ही बोलते हैं टेक्निकली कंप्लीट, तो हमने भी ये नोटिफिकेशन टेको डन हो गया हमारा। अब हमको मेंटेनेंस ऑर्डर को टेको करना है। क्यों टेको करना है, टेक्निकली कंप्लीट करना है, ताकि ये ओपन ना रहे, क्योंकि हमारा जितना भी काम था, जो भी हमको काम काम इन द सेंस जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर का से रिलेटेड जो भी वर्क एक्सिक्यूशन करना था, ऑल वर्क हैव कंप्लीटेड एंड ऑल द मेंटेनेंस एक्सक्यूशन हैव कंप्लीटेड, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सो वी नीड टू डू मेंटेनेंस ऑर्डर टेको। सो इसके लिए जो टी कोड होगा IW32 होगा। सो मैं जाऊंगा नेक्स्ट टैब पे, ये मेंटेनेंस ऑर्डर में जाऊंगा मैं, सॉरी SAP सर्वर पे, और यूज करूंगा टी कोड IW32। तो IW32 चेक करूँ तो ये ऑर्डर का डिटेल आ जाएगा, वी विल पुट ऑर्डर नंबर द सेम ऑर्डर। ये क्यों ऐसा ले रहा है, क्योंकि अभी इसी ऑर्डर को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट जो भी हम ऑर्डर या नोटिफिकेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम रीड कर लेता है। देन प्रेस इंटर। सो अब हमको इसमें क्या हमने इशू किया था, बियरिंग इशू किया था। अब हमको कोई जरूरत नहीं है, और हमको कोई इसमें रिमेनिंग वर्क नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम रिमेनिंग वर्क नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि अब इसको हम टैको कर सकते हैं। इसको भी टैको करने के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट है आपको यहाँ दिखेगा। पहले केवल प्लान कॉस्ट दिख रहा था, अब एक्चुअल कॉस्ट भी दिख रहा है इस मेंटेनेंस ऑर्डर का। मतलब कि हमारा काम अब कंप्लीट हो चुका है। जो हमने मेंटेनेंस ऑर्डर में मटेरियल यूज किया था, पहले प्लान कॉस्ट दिख रहा था, लेकिन अभी एक्चुअल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं उसका डिटेल कि कौन सा क्या चीजें हुई हैं। ये इन्वेंट्री चेंज, स्क्रैप एक्सटर्नल प्रोडक्ट हुआ है हमारा, कुछ चीजें हमने रिप्लेस किया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए मैं एक सिस्टम स्टेटस और यूजर स्टेटस दिखा रहा हूँ। अब इस सिस्टम का स्टेटस क्या दिखा रहा है कि रिलीज किया हमने, कंफर्म किया, गुड्स मूवमेंट पोस्ट किया, जॉब फिनिश हुआ, मटेरियल अवेलेबिलिटी नॉट चेक, हमने मटेरियल अवेलेबिलिटी नॉट नहीं चेक किया था, और प्री कॉस्टेड, पहले प्री कॉस्टेड था अब कॉस्ट हो चुका है इसमें। ठीक है, तो हम ये है, यही होता है सिस्टम स्टेटस और यूजर स्टेटस। और सिस्टम स्टेटस यहाँ से आपको दिख रहा है, और ये होता है यूजर स्टेटस, अनप्लान, प्लानिंग कंप्लीट, रेडी टू शेड्यूल, शेड्यूल, ऑन होल्ड, वेटिंग फॉर। ये क्या है, ये यूजर स्टेटस है। तो यूजर स्टेटस क्या दिखा रहा है कि जो भी प्लानिंग करना था वो प्लानिंग हो चुका है। देन आई विल गो बैक
अब हमारा पूरी तरह से हम मेक श्योर करेंगे कि वी विल मेक श्योर कि अब कोई भी काम रिमेन पेंडिंग नहीं है। वॉट एवर वी वांट वी हैड कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब कुछ भी बाकी नहीं है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस फ्लैग एंड आई विल पुट रेफरेंस डेट एज ए 3 o'clock, क्योंकि इतने बजे ही मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ डैमेज पे क्लिक करूंगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेव कंटिन्यू कर दूंगा। सो दिस इज हाउ वी हैव सेव वी हैड कंप्लीट मेंटेनेंस ऑर्डर। सो हमने ये भी प्रोसेस को भी, मेंटेनेंस ऑर्डर टेक को भी कंप्लीट कर लिया। तो हम यहाँ डन लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, इसको फिर से डिस्प्ले करेंगे अगर ऑर्डर को, तो आप देख सकते हैं कि यूजर सिस्टम का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। टेक्निकली कंप्लीट, ऑर्डर कंफर्म, गुड मूवमेंट पोस्टेड, क्योंकि गुड्स हम लोग इसमें इशू किए थे। जॉब फिनिश हो चुकी है, मटेरियलिटी हम लोग नहीं चेक किए हैं, ये प्री कॉस्टेड था। अब सेटलमेंट रूल क्रिएटेड हो। अब जो FICO का डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग का, वो इसको सेटलमेंट भी कर सकता है, वो उसका सेटलमेंट भी कर सकता है। तो उसके लिए जो टी कोड होता है KO88 होता है, लेकिन ये हमारे पार्ट में नहीं होता, इसीलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे और एज इट इज हम इसको छोड़ देंगे। जो भी सेटलमेंट और जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, जिस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो वो कैसे होता है मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो एक टी कोड होता है KO88 एंड प्रेस इंटर। तो ये कंट्रोलिंग आपका आ जाएगा, ये मेंटेनेंस ऑर्डर। शेड्यूलिंग पीरियड मतलब जो महीना चल रहा है, जैसे दिसंबर का महीना है तो वो पीरियड 12 डाल देंगे। अगर आपका नवंबर रहता तो आप 11 डालते, अक्टूबर आता तो 10 डालते। पोस्टिंग पीरियड भी 12। फिक्सल एरिया 2022 है तो ये डालेंगे। और इस पे प्रोसेसिंग टाइप हमेशा ऑटोमेटिक रहेगा और टेस्ट रन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और इट इज वर्किंग। इसमें कोई एरर नहीं हुआ। यहाँ आपने देख सकते हैं कि सेटलमेंट एक्सिक्यूटेड हो चुका है और एक्सिक्यूशन टाइप सेटलमेंट एक्सिक्यूटेड, केवल रन किया था, टेस्ट रन किया था और इसमें कुछ नहीं किया। देन आई विल गो बैक अगेन। और अब इस बार क्या करेंगे, टेस्ट रन से क्लिक टिक हटा के चेक ट्रांजेक्शन डेटा पे क्लिक टिक कर देंगे और इसको बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये डन हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें कोई एरर नहीं है। अपडेटेड रन हो चुका है, प्रोसेसिंग मोड अपडेटेड एंड सेटलमेंट एक्यूटेड, सेटलमेंट जो था वो एक्सिक्यूट हो चुका है। ये इसका डिटेल सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। एंड आई विल गो बैक। सो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डन। हमने एक ये भी किया कि मेंटेनेंस ऑर्डर को सेटल कर दिया, सेटलमेंट कर दिया। जो भी कंट्रोल इसके लिए जो टी कोड था KO88 था, ये भी डन हमने कर लिया। सो हमने इसको भी परफॉर्म कर लिया। ओके, नाउ वी विल गो अगेन थ्रू वर्क ऑर्डर। हम लोग वर्क ऑर्डर को चेक करने जाएंगे, मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर को चेक करने जाएंगे। उसके लिए टी कोड विल बी IW32, क्योंकि चेंज मोड में हम उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। सो प्रेस इंटर। अब ये देखेंगे कि यहाँ से इसका यूजर स्टेटस थोड़ा चेंज होगा। सेटलमेंट रूल क्रिएटेड, प्री कॉस्टेड, मटेरियल अवेलेबिलिटी नॉट चेक, जॉब फिनिश, गुड्स मूवमेंट पोस्टेड, कंफर्म और टेक्निकल कंप्लीटेड। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लिक ऑन कंप्लीट बिजनेस। तो अब क्या होगा, कंप्लीट बिजनेस तब किया जाता है जब ये सेटलमेंट ऑर्डर सेटलमेंट हो जाता है ना, उसके बाद ही कंप्लीट किया जाता है। देन अगर अगर फिर से हम लोग देखेंगे तो वो कंप्लीट वाला जो आइकन था वो हट गया यहाँ से। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीट आवर 1 साइकिल ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस। इसका ऑपरेशन क्या था, यहाँ कूलिंग फैन डैमेज था। इसका जो कंपोनेंट है वो ये था, बियरिंग था। कूलिंग फैन बियरिंग डैमेज था ना, यहाँ पे मैंने लिखा था फैन डैमेज। तो कूलिंग फैन डैमेज हुआ था, क्यों हुआ था, बियरिंग की वजह से। सो बियरिंग, फिर उसके बाद ये आप इसका डिटेल सारा चीज देखिएगा नोटिफिकेशन में, हेडर डेटा में आके नोटिफिकेशन में देखिएगा तो आपको उसका डिटेल भी लिख जाएगा कि आइटम में क्या प्रॉब्लम था। तो बियरिंग प्रॉब्लम था, कॉज क्या था इसका, ब्रेकेज हो गया था। टास्क क्या है, रिप्लेस पार्ट, आपने रिप्लेस पार्ट को आपने रिप्लेस किया, यही आपने टास्क परफॉर्म किया। एक्टिविटी आपने क्या परफॉर्म किया, आपने पार्ट को रिप्लेस किया, दैट्स। उसके बाद फिर टास्क में भी देखिएगा तो वही सेम चीज, रिप्लेस पार्ट। ओके, और एक्टिविटी में भी आप देखिएगा तो यही दिखेगा आपको। सो क्या हुआ, इस तरह से हमने नोटिफिकेशन और ऑर्डर को कंप्लीट किया और ये हमारी फुल साइकिल थी। वन इन टू इंड साइकिल को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं। अब उसके बाद जी
जो लास्ट टर्म्स है ये कंप्लीट कर दिया हमने, कंप्लीट बिजनेस। ओके, उसके बाद हमने इसके लिए टी कोड क्या यूज किया, IW32, IW32, और इसको भी हमने डन कर लिया। सो ये पूरी कंप्लीट साइकिल है करेक्टिव मेंटेनेंस का, एक पूरा वन इन टू एंड साइकिल को हमने परफॉर्म किया। फर्स्ट व्हाट ही हैव डन, आई हैव क्रिएट नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे मैंने मेंटेन किया। उसके बाद नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में हमने ऑर्डर क्रिएट किया था IW34 का की कोड यूज करके, ये हो गया। और कौन सा ऑर्डर टाइप क्रिएट किया था, PM01 ऑर्डर टाइप क्रिएट किया था, PM01, और M1 नोटिफिकेशन टाइप क्रिएट किया था। स्टॉक ओवरव्यू किया था, तो अब स्टॉक ओवरव्यू देखिए, बैक कर रहा हूं। अब स्टॉक ओवरव्यू हम लोग MB52 से किए थे, तो प्रेस इंटर करूंगा, यहाँ एग्जीक्यूट करूंगा, तो अब जो पहले जो था वो बियरिंग पहले एक क्वांटिटी था, अब 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस ऑर्डर में इशू कर दिया। उसके बाद हमने गुड्स इशू के लिए गए, मतलब गुड्स इशू और विड्रॉल जिसको बोल सकते हैं, विड्रॉल। सो हमने मीगो के थ्रू गुड्स इशू को पोस्ट किया था। उसके बाद हम लोग ऑर्डर टाइम कंफर्म करने के लिए गए, तो उसके लिए टी कोड यूज किया IW41, और उसको हमने कंफर्म किया। फिर मेंटेनेंस नोटिफिकेशन को टेको किया, क्यों, क्योंकि अब हमारी मशीन ब्रेकडाउन कंडीशन में नहीं है, मतलब करेक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमको जो भी मेंटेनेंस परफॉर्म करना था, करेक्टिव का एक्शन लेना था, वो हमने परफॉर्म कर लिया था। देन हमको जो भी मेंटेनेंस ऑर्डर में मटेरियल इशू करना था, या जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ड्यू टू दिस रीजन हमने मेंटेनेंस ऑर्डर को भी टैको किया। उसके बाद सारा ये बिजनेस कंप्लीट हो चुका था। ड्यू टू दिस रीजन व्हाट वी हैव डन, मेंटेनेंस ऑर्डर सेटलमेंट बाय यूजिंग टी कोड KO88। और उसके बाद ये जो है मेंटेनेंस ऑर्डर कंप्लीट बिजनेस, लास्ट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया था। अब उसमें कोई और एक्टिविटी परफॉर्म हम नहीं कर सकते। यू कैन सी इट इन मेंटेनेंस ऑर्डर। अगर आप मेंटेनेंस ऑर्डर में दोबारा जाएंगे तो आपको कुछ भी करने के लिए नहीं दिखेगा, ये टोटल ग्रीड आउट दिखेगा, ये पूरी फील्ड ही आपको ग्रेड आउट दिखेगी। ठीक है, यही इसका मेन रीजन है। और इस तरह से हमने ये पूरी साइकिल को कंप्लीट किया। सो इफ एनी डाउट आपके पास, यदि आपके पास कोई डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो, देन यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन पिंग मी एनी टाइम। वी विल कनेक्ट एंड वी विल डिस्कस विथ यू। ओके, बाय, आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।